کیا جائے اور جلد از جلد اور اس طرح کے منصوبے لائے جائیں جس سے پبلک کا سفر آسان ہو، سفر بہتر ہو. اور جن بسوں کو ابھی آپ بھی اس میں سفر کریں گے، یہ دنیا میں کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں، کسی بڑے میں بڑے ترقی یافتہ ملک میں اس سے بہتر بسیں نہیں چلتی. یہ بہترین بس سروس ہے، سستے میں سستی بس سروس ہے، اور اس میں جدید ٹیکنالوجی کی ہر چیز موجود ہے تاکہ لوگوں کو ہر وہ سہولت مل سکے کراچی کے شہریوں کو جس کے وہ مستحق ہیں. تو یہ چند گزارشات تھیں. اب اس کے بعد اگر میں گزارش کروں گا کہ فیصل عیدی صاحب 2 الفاظ کہیں، پھر سعید علی صاحب 2 الفاظ کہیں گے. میں سندھ گورنمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کراچی کے اندر ایک اور جو ہے وہ بس سروس کا آغاز کیا. اس کی بہت زیادہ شدت سے ضرورت تھی کیونکہ کراچی کو آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس کو جو ہے وہ اس طرح کی ریپڈ بس سروس کی ضرورت ہے. اس کو اور ایکسٹینڈ کر کے دور دراز کے علاقوں میں لے جایا جائے تاکہ کراچی میں جو مہنگے گھر ہیں لوگ باہر کی طرف جائیں اور ٹرانسپورٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آسانی سے شہر میں کام کرنے کے لیے آ سکیں. تو یہ بہت زبردست تحفہ ہے اور اس کو مزید ایکسٹینشن کی ضرورت ہے. سیم ہمارے کراچی کے اندر ایسے ہی ٹرانسپورٹ سسٹم کی ضرورت ہے جیسے بمبئی کے پاس ہے، اور ہمیں اس کو کاپی کرنا چاہیے. اور وہ اپنے پاؤں پہ چلتا ہے، اس کی اپنی جو ہے وہ انکم کے ذرائع ہیں، تو ہمیں اس کو کاپی کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ یہ کرے گی اور اس کو اور مزید ایکسٹینشن دیں گے جس سے عوام کو بہت فائدہ ہوگا. میں ایک بار پھر جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سعید غنی صاحب. میں بس مختصراً کراچی کے شہریوں سے گزارش کروں گا کہ حکومت سندھ شہریوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تاخیر ضرور ہوئی ان پروجیکٹس میں، لیکن بالآخر پہلے پیپلز بس سروس اور اس کے بعد یہ عبدالستار عیدی لائن کا آغاز آج ہو رہا ہے. کراچی کے شہریوں کو ان بسوں کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح وہ اپنی کسی ذاتی پراپرٹی کا رکھتے ہیں. یہ بسز جو ہیں وہ لوگوں کے پیسوں سے، لوگوں کے ٹیکسز کے پیسوں سے لی گئی ہیں. ان بسز کو آپ جتنا اچھی طرح سنبھال کے رکھیں گے، ان کا خیال کریں گے، یہ زیادہ عرصہ چلیں گی اور یہ سہولت کراچی کے شہریوں کو دیں گی. اور اگر بدقسمتی سے ان بسوں کو شہریوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یا اگر کسی اور نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور لوگوں نے اس کو نہیں روکا یا ان کی نشاندہی نہیں کی، تو الٹیمیٹلی جو نقصان ہوگا وہ شہریوں کا ہوگا. وہ ایک اچھی بس سروس سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے اور وہ سہولت ان کو میسر نہیں ہوگی. تو میری گزارش ہے، یہ آپ کی بسیں ہیں، آپ کے لیے ہیں، ان کا خیال کریں، ان کا فائدہ اٹھائیں تاکہ یہ دیر تک چلتی رہیں اور مزید بسیں بھی آئیں اور سندھ حکومت کی حوصلہ افزائی بھی ہو تاکہ ایک اچھی سہولت لوگوں کو ملتی رہے. یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت تقریباً 250 زیادہ بسیں آ چکی ہیں شہر میں. پہلے تو یہ تھا کہ جو پرائیویٹ بسیں چل رہی ہیں، پوشیدہ انتہائی خراب بسیں چل رہی ہیں، ان پر پابندی لگا دیجیے. اب جب کیونکہ اچھی خاصی تعداد میں بسیں آ چکی ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی بندوبست کریں کیونکہ بہت لوگ پریشان ہیں. ڈیزل کے ڈرم رکھ کے وہ اندر جو ہے وہ لیکن میں عرض کر لوں، کراچی کو بہت زیادہ اور بھی بس سروسز کی ضرورت ہے اور مزید بسز کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت کراچی میں کوئی 5000 سے زائد جو بسیں وہ چل رہی ہیں، اور جس میں آپ نے باقی بسز کا بھی ذکر کیا. ہماری پرائرٹی یہ ہے، اور میرے خود تمام ٹرانسپورٹ حضرات سے بات کی ہے، ان کو مختلف آپشنز دیے ہیں. میں نے کہا جی اگر آپ لوگ خود اس طرح کی بسز لے کر آنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کی اس میں ہر صورت میں مدد کرے گی. آپ کو اگر لون چاہیے تو بینکس کو ریفر کرے گی، آپ کو لون دیں. اگر آپ خود اکیلے افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کو کنسورشیم بنا ہے، اس میں آپ کو گورنمنٹ فائدہ دے گی. اگر آپ کو کوئی گورنمنٹ سے سبسڈی چاہیے، اس طرح کی بسز کوئی بھی پرائیویٹ بزنس مین لے کر آنا چاہے، کوئی ٹرانسپورٹر لے کر آنا چاہے، کوئی انویسٹر لے کر آنا چاہے، گورنمنٹ ان کو فیسلیٹ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف کراچی پر پورے سندھ بھر میں جگہ جگہ گلی گلی اس طرح کی بسز یا اس سے بہتر بسز جو ہیں وہ چلیں. اچھا سر، یہ بتائیے جس طرح حکومت سندھ نزاکت آ جاتی ہے، بسیں نزاکت والی ہیں، لال بسیں آپ نے چلائیں، سڑکوں کا حال آپ بھی بہتر جانتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بسیں بہت مہنگی ہیں، ان کو قائم رکھنے کے لیے بسوں کو سڑکوں کی بہتری کب تک بہتر ہو جائے؟ دیکھیں جی، اس وقت لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سید ناصر حسین شاہ صاحب اس کو چلا رہے ہیں، اور ناصر حسین شاہ صاحب نے پرائرٹی کے بیسس پر وہ جو روٹس تھے جہاں پہ اس وقت یہ برساتوں کے بعد پرابلمز ہوئے تھے وہ روٹس بن رہے ہیں. میرے پاس ڈیلی کی
बेसिस पे मैं अभी भी अगर अपने मोबाइल चेक कराऊं कि मुझे डेली 8-10 पिक्चर्स आती हैं कि इस वक्त नासिर हुसैन शाह साहब लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उन सड़कों को बना रहा है, दिन रात जो है उन सड़कों पे काम मरम्मत का चल रहा है। वो एरियाज भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो आप खुद भी मेरे ख्याल से कराची में उन चीज़ों को वॉच करते होंगे। तो हमारी डेफिनेटली वज़ीर आला साहब ने ये कहा था, क्योंकि हमने एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से गुजारिश की थी कि चंद रोड्स ऐसे हैं जो कि बरसातों के बाद ख़राब हो गए, वो बसेस को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो उन्होंने जो है फौरी तौर पर कोई 1.5 अरब रुपए मेरे ख्याल से लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कहा कि आप लोग काम शुरू करें और जो पैसे होंगे मजीद दरकार होंगे हम देंगे, लेकिन उन तमाम रोडों को मोटरेबल करें। तो वो सारे मोटरेबल रोड हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये सारी जितनी भी बस सर्विसेज हैं आपको वहाँ रोड भी अच्छे मिलेंगे, बसें भी अच्छी मिलेंगी। लेकिन जितना सही साहब ने एक बात कही, कुछ कंप्लेंट ये भी आ रही है कि कुछ लोग जो उन बसों में बैठकर थोड़ा बसों को हल्की फुल्की शरारत करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, ये जितना सही साहब ने कहा ये आपकी बसें हैं, इसको वो पता चले किसने क्या जुर्माना लगा। वायलेशन की हो रही, किराए में वायलेशन है। आपने ऐलान किया था 25 रुपए लेंगे, ज्यादा 50 वो एक्स्ट्रा किराया ले रहा 50 रुपए। पीपल बस सर्विस की बना रहा हूँ। आप कौन सी मीडिया से भैया? अच्छा मैं आपका मैं करूँ, देखिए जहाँ पे कभी इक्का दुक्का शिकायत आती है ना, हम उनको एड्रेस करते हैं। अभी हमने एक उनको सख्ती से जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको कहा है कि 1-2 बसों में शिकायत आई थी, किराया वो एक जैसा लिया गया है, लेकिन हमने इनको बाउंड किया है कि जो गवर्नमेंट ने तय किया है वो किया जाए। क्योंकि अगर किराया कॉन्ट्रैक्टर कम ले रहा है तो कोई कॉन्ट्रैक्टर एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको पूरी सब्सिडी दी हुई है। अच्छा ये वो हमने 25 रुपए में उनको बाउंड किया हुआ है। ये बताइए कि जिस तरह हुकूमत सिंध जो है वो अभी पहले इस पर बात करें, उस पर बात करते हैं। एक मिनट भाई। सर, ये मंसूबा 2016-17 में मुकम्मल होना था, क्या वजूहात है, इसमें देर क्यों हुई? देखिए मैं आपको बता दूं एक बात, ये अच्छा सवाल आपने किया कि सबको शिकायत होती कि यार ये, और उसमें गवर्नमेंट पे लोग शुरू भी कर देते हैं। कोई भी सड़क जैसे बननी होती है ना, जब लेट्स सपोज अगर ये मंसूबा बना तो इसमें एक एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, इसमें PTCL इन्वॉल्व था, इसमें के इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व थी, इसमें सुई गैस थी, इसमें वाटर बोर्ड था, इसमें KMC थी। 10 इदारों के जो लाइंस हैं उन रोडों पे जा रही होती हैं, उनके पोल्स उन रोडों पे होते हैं। फिर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही होती है कि जी आप इसको हटाएं। फिर वो कहते हैं जी अगर आप चाहते हैं कि इस पोल को इस जगह से जाके 20 जगह पे जगह उसका आप चालान पे करें, तो वो एक प्रोसेस है जो अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ता जा रहा है। अभी जो रेड लाइन पे काम हो रहा है उसमें भी हमने के इलेक्ट्रिक को 4 महीने पहले पैसे पे किए, वो पैसे भी पे कर दिए गवर्नमेंट ने कि आप ये पोल हटा के इस जगह से उसको किसी और जगह पे लेकर जाए। लेकिन आज दिन तक पैसे पे होने के बावजूद अब डिले उधर से है, लेकिन फाइनली गालियां हुआ गवर्नमेंट को पड़नी है। अच्छा सर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो फैसिलिटेट कर रही है लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, शहरियों को गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो बसों के हवाले से फैसिलिटेट कर रही है, और शहरी जो है वो इसको सराहते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वाकई जो है वो मुश्किलात में कमी आई है। सर, पानी के मंसूबों के हवाले से बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध अनकरीब में शहरियों के मुश्किलात को कम करने के लिए पानी के मंसूबे पर क्या काम? देखिए बिल्कुल, इस वक्त K4 पे भी काम चल रहा है, उसके अलावा धाबेजी पंपिंग स्टेशन की अपग्रेडेशन पे भी काम चल रहा है, 65 MGD पे भी इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो सारी चीज़ों पे हब डैम को भी की कैपेसिटी को बढ़ाने में काम चल रहा है। जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध में, आपको एक बात बता दूं कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग सियासत करते हैं इस चीज़ में। मैं ईमानदारी से बताऊं कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट को डिले जरूर हो रहे हैं, चीज़ें कुछ डिले कुछ मुख्तलिफ हालात की मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो रही हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट में सिंध गवर्नमेंट इस वक्त जो काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि उसमें सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये हमारा फर्ज है, हमारा एहसान कोई नहीं है, हमारा फर्ज है। जी आपने बताया यूटिलिटीज की अप्रूवल का मसला था जिसकी वजह से ताखीर हुई। फिर विफाकी हुकूमत का ग्रीन लाइन 18 किलोमीटर का मंसूबा चल पड़ा आपसे पहले। 2016 में दोनों मंसूबे शुरू हुए थे, इसीलिए मुखालफिन को शायद ये मौका मिलता है कि कराची के मंसूबा आपकी तरजीह नहीं है। आपको इस बात पर क्या कहेंगे, क्योंकि इसकी फकत जो किलोमीटर है, इसमें बनारस पुल भी आ रहा है 1 किलोमीटर का, तकरीबन वही है, तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ट्रैक बनाने में आपको इतना लगा है, और तकरीबन 2 अरब रुपए की लागत आई है। कराची के शहरी के साथ कब तक ये जुल्म करेंगे आप लोग? देखिए जी, बात सुने, मैं समझ रहा हूँ कि आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज बसें आपके सामने मौजूद है, आप सवाल के लिए जवाब बोले या टॉक शो पे बैठे मेरे भाई। अच्छा, तो अब ये बसें चल रही है, बसें अभी आपके सामने रूट पे भी चलेंगी, पब्लिक भी आज इसको यूटिलाइज करेगी। जो डिले के वजूहात मैंने बताया कि एक तो टेक्निकल रीजंस थे, और उन टेक्निकल रीजंस के बाद जो मेन इशू था, बीच में फिर 1-1.5 साल कोविड चलता रहा, जिसमें आपके लॉकडाउन भी चलते रहे, तो ये सारी मुख्तलिफ वजूहात है जिसकी वजह से डिले होता रहा। लेकिन
चीज़ माशाल्लाह सबसे बेहतर चीज़, दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटीज़ में एक फैसिलिटी आज कराची को मुहैया हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो डिले हुए वो डिले नहीं होंगे। इसलिए मैंने कहा कि एक और प्रोजेक्ट को मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द कराची के आवाम को तोहफा देने वाले हम लोग, लेकिन अनाउंस इसलिए नहीं कर रहा, फिर वो मीडिया के दोस्त वो डेट पकड़ लेंगे। प्रोजेक्ट पे सब्सिडी कितनी दे रहे हैं? दूसरा, इसमें कुछ एरिया जो है कॉरिडोर से बाहर बस जा रही है, स्पेशली बनारस के पुल पे, सिक्योरिटी मेजर क्या लेंगे आप? कल को इसमें डकैती होगी तो फिर से बहुत बदनाम हो जाएगी। देखिए जी, इस प्रोजेक्ट में एक SIDSL कंपनी बनी हुई है जो कि ग्रीन लाइन को भी देख रही है, ऑरेंज लाइन को भी देख रही है। उस पूरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड रखे गए हैं। एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को उन्होंने हायर किया हुआ है जिसको सिक्योरिटी गार्ड उसको सिक्योरिटी भी करेंगे। दूसरा सवाल आपका था सब्सिडी। हाँ जी, बहुत सवाल किया। ये पूरी सब्सिडी है मेरे भाई, वरना आप 20 रुपए में आजकल चंची वाले को बोले रोड क्रॉस करो, 20 रुपए में वो रोड भी क्रॉस नहीं करवाएगा आपको। आप एयर कंडीशन बस 20 रुपए में और 15 रुपए में और 10 रुपए में आप जो है वो अवेल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 100% सब्सिडी है। ये जो भी पैसे हैं जो आपके करंट डीजल आप खर्च करेंगे, आपको डीजल की आज रेट पता है, डीजल के रेट्स क्या है, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से आपको फैसिलिटीज दी गई हैं। और जो रेड लाइन की हमारी बस सर्विस तो वो कब से स्टार्ट होगी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और दूसरा मुझे ये बता दीजिएगा कि कोई डेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोई तारीख दे रहे हैं कि ये ग्रीन लाइन से मुख्तलिफ होगी और उसके बाद बड़े रूट पे कवर करेंगे मुसाफिर। देखिए जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारा एक और प्रोजेक्ट है कि हम इसको आपस में इंटीग्रेट करें, इसको मिलाएं आपस में, ऑरेंज लाइन को जो अब्दुल सत्तार ईदी लाइन को ग्रीन लाइन से। तो एक तो हम लोग उसको अनकरीब उसमें कोई ना कोई सर्विस हम शुरू कर लेंगे। हो सकता है हम पीपुल्स बस सर्विस उस मिसिंग स्पेस के लिए शुरू कर दें। एक ये भी ऑप्शन हम गौर कर रहे हैं। दूसरा आपका सवाल था रेड लाइन, वो मेरे ख्याल आप रेड लाइन के लिए कर रहे थे या पीपुल्स बस सर्विस की बात कर रहे थे? अच्छा, रेड लाइन जो है उस पर काम शुरू हो गया, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की। आप वो बात कर रहे हैं पीपुल्स बस सर्विसेज की, उसको आप कह रहे हैं रेड लाइन, वो पीपुल्स बस सर्विस है। रेड लाइन अलग है प्रोजेक्ट। हाँ, वो पीपुल्स बस सर्विस है। उसमें मैंने कहा कि कुछ रूट्स पे जो है इस वक्त रिपेयर का काम चल रहा है, रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है। जैसे रिहेबिलिटेशन स्टार्ट होगी, लेकिन हमने उसके अलावा एक्स्ट्रा पैरेलल रूट्स काफी खोल दिए हैं जो शुरू में, उसके बाद और अभी शायद हम मंडे को या ट्यूसडे को एक और रूट भी पीपुल्स बस सर्विस का शुरू करने वाले हैं। इनका सबसे पहले बरसात तबाहकारी किया है, उनमें PDA में रिपोर्ट नहीं आया, उनमें उन्होंने कंबर शादात को खैरपुर के वध में मुतासर करार है रकम तो जारी किया डिप्टी कमिश्नर उनके रकम ने किया हुआ नवाब शाह जिले के जारी किया है। नवाब शाह में देखिए, मैं आपको जवाब बता दूं। जो भी डिप्टी कमिश्नर को पैसे चीफ सेक्रेटरी साहब रिलीज कर रहे हैं, वो डिप्टी कमिश्नर साहब जो डिमांड करते हैं उसके हवाले से किए जाते हैं। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स का आपने नाम लिया उनकी पॉपुलेशन भी देख लें कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है। और दूसरी बात, जितना डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियरली कह दिया, जिस डिप्टी कमिश्नर को जितने पैसों की जरूरत हो इसके लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को डिमांड भेज सकता है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनकी डिमांड को चेक करके उनको पैसे रिलीज करते हैं। देखिए जी, ऑलमोस्ट जितने भी बड़े रूट से जहाँ पे रिपेयर का काम था, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, सिंध लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने और KMC ने उन सारी जगहों पर काम शुरू कर दिया और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा शर्जील साहब, इहो ॿुधाइजो जेके प्राइवेट बस सर्विसिस आहिनि जेके हलनि थियूं पयूं, उहे बकरियुनि वांगुरु आवाम खे जेको वाड़नि थियूं पियूं, उनमें 50 जी कैपेसिटी जी जगह ते 100 माण्हू ते वाड़िया था वञनि, उन्हनि खिलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई था कंदो? देखिए जी, एक इसके कानून बने हुए हैं। अब उसमें फिर ट्रैफिक पुलिस को है कि जी जहाँ पे ओवरलोडिंग कर रहे हैं, जो प्राइवेट बस सर्विस वाले आप बोल रहे हैं, जो पुरानी बसें चल रही हैं, उन पे चालान किए जाए, वो चालान भी होते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।
ऑरेंज कलर में करते हैं। सर ऑरेंज किया तो रंग खराब हो गया। मॉडल ओरिजिनल यही बना है, रंग रेड हो गया सर, आप भी रख लें सर, कोई मसला नहीं। द ग्रीन एंड ओरिजिनल अलहाज दिस सप्लाई। थैंक यू माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा, अब आप दोस्तों को भी गुजारिश है जो इस बस में सफर कर सके, पहला ट्रिप फ्री है तो आ सकते हैं। बनाओ हर सुबह ऑल पर्स हैप्पी सुबह।